हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। आज हम करने वाले हैं CTET सितंबर 2016 पेपर 1 CDP का, और इससे पहले हम कर चुके हैं पेपर 2 CDP सेम सितंबर 2016, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the most effective method to encourage conceptual development in student? Conceptual development के लिए effective method कौन सा है? Give students multiple examples and encourage them to use reasoning, use punishment till students have made the required concepts change. New concepts need to understood on their own without any reference to the old ones. Replace the students' incorrect ideas with the correct ones by asking them to memorize. So which one is correct? Option number A is correct. आप लोग भी इसके साथ ही साथ अपने आंसर्स मार्क कीजिए एंड लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 30. अब सेकंड क्वेश्चन, प्राइमरी school children will learn most effectively in an atmosphere where the focus and stress are only on mastering primary cognitive skills of reading, writing and mathematics, where the teacher leads all the learning and accepts students to play a passive role, where their emotional needs are met and they feel that they are valued, या फिर where teacher is authoritative and clearly detect what should be done. प्राइमरी स्कूल टीचर इफ़ेक्टिवली एटमॉस्फेयर में कैसे लर्न कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहां उनकी इमोशनल नीड्स फुलफिलमेंट होगा और वो फील करेंगे कि उनकी वैल्यू की जा रही है, तो यहाँ पर उन्हें एक इफ़ेक्टिव एनवायरनमेंट मिल पाएगा. थर्ड क्वेश्चन, अ चाइल्ड सीज अ क्रो फ्लाइंग पास्ट इन द विंडो एंड सेज अ बर्ड. What does this suggest about the child's thinking? The child has previously stored, memorized. The child has developed the concept of bird. The child had developed some tools of language to communicate her experiences. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 3, ओनली 2, 1 2 या फिर 2 3. अगर एक चाइल्ड ने क्रो को उड़ते हुए देख करके कहा अ बर्ड, तो इसमें से उसे थिंकिंग के बारे में क्या पता चलता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 एंड 3, यानी कि ऑल करेक्ट है. उसने प्रीवियसली स्टोर मेमोरी का यूज़ किया और उसने ये कॉन्सेप्ट डेवलप करा कि वो एक बर्ड है, और उसके लिए उसने टूल यानी कि कम्युनिकेशन का यूज़ किया. व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट्स टू इनकरेज देम टू डू टास्क विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन? इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए टीचर अपने स्टूडेंट्स के बताएगा किस तरह से इनकरेज करेगा. कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट अ टॉफ़ी, उन्हें उनका काम फटाफट करवाएगा और उन्हें टॉफ़ी देंगे. ट्राई टू डू इट, यू विल लर्न. कम फिनिश इट बिफोर शी डज. वाई कैनॉट यू बी लाइक हिम? सी ही हैज़ डन इज परफेक्टली. यानी कि यहाँ पर उसने टीचर ने कंपैरिजन कर दिया है कि तुम्हारी फ्रेंड ने तो काम कर दिया है, उसने बहुत अच्छे से काम किया है, तुमने क्यों नहीं किया उसी की तरह. कम ऑन फास्ट इट बिफोर सी डज, उससे पहले तुम करके दिखाओ. ट्राई टू डू इट, यू विल लर्न, तुम करो इससे सीखोगे, या फिर तुम इसे जल्दी करो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी. इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. ट्राई टू डू इट, यू विल लर्न. Next question, how can a teacher encourage her students to be intrinsically motivated towards learning for the sake of learning? By supporting them in setting individual goals and their mastery, offering tangible rewards such as toffees, by including anxiety and inducing anxiety and fear, by giving competitive tasks. So its correct answer is option number A. Supporting them in setting individual goals and their mastery. Question number 6. In an elementary classroom, what is an effective teacher should aim at the students to be motivated? By using punitive measures
so that they respect the teacher, to perform so that they get good marks in the end of the year examination, to learn so that they become curious and love learning for its own, to rote memorize so that they become good at recall. सो एलिमेंट्री क्लासरूम के टीचर के क्या एम होने चाहिए स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू लर्न सो दैट दे बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस? इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस का एग्जाम्पल क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग हम उनसे करवाएंगे, कॉम्पिटिटिव क्लासरूम बनाएंगे, कांस्टेंट कॉम्पिटिटिव इवोल्यूशन करेंगे, कोऑपरल पनिशमेंट. सो 7th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे हम लर्निंग पर ध्यान देंगे. 8th क्वेश्चन, द कैपहकैडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम. ये जो है ये CTET 2 में भी क्वेश्चन आया था जिसमें हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था. उसमें पूछा था कि कैपहकैडल प्रिंसिपल किस पर वर्क करता है. सो 8th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेड टू टो. 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट? 9th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, ऑप्शन नंबर बी. 10th, a 6-year-old girl shows exceptional sporty ability. Both of her parents are sportspersons, send her for coaching every day and train her on weekends. Her capability are most likely to be the result of an interaction between health and training, discipline and nutrition, heredity and environment, या फिर growth and development. किसका उस पर इफेक्ट पड़ा ज़्यादा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. यहाँ पर बताया गया कि उसे ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता था और जो उसके पेरेंट्स थे वो भी स्पोर्ट्स में थे, स्पोर्ट्स पर्सन्स थे. तो यही तो हो गया हेरिडिटी, और यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजना हो गया, उसे सुटेबल एनवायरनमेंट मिल गया. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन के सेकेंडरी एजेंट्स कौन से होते हैं? स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, फैमिली एंड नेबरहुड, स्कूल एंड नेबरहुड. 11th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कूल एंड नेबरहुड. ये इसके सेकेंडरी एजेंट्स होते हैं. प्राइमरी एजेंट्स कौन से होंगे फिर सोशलाइजेशन के? फैमिली. अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज. लेव वाइगोत्स्की ने प्राइमरी कॉज कॉग्निटिव डेवलपमेंट का किसे बताया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोशल इंटरेक्शन. उन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बहुत ज़्यादा बात करी थी अपनी थ्योरी में. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेट वुड बी द टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड फॉल? योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ इफ़ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट. इस स्टेज मॉरल रीजनिंग की स्टेज से इस वाले में टिपिकल रिस्पॉन्स में क्या हमें पता चलता है कि अगर हम ये कहेंगे योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ इफ़ यू आर ऑनेस्ट, तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर प्राउड फील करेंगे अगर तुम ऑनेस्ट होते हो. तो ये जो है कोलबर्ग ने जो स्टेजेस दी थी वो इसमें से कौन सी स्टेज पर फोकस कर रहे हैं? गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओबीडिएशन, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओबीडिएशन. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन. अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें गुड बॉय कहा जाएगा और अगर ऐसा करोगे तो गुड गर्ल. इस तरह से यहाँ पर वो इस क्वेश्चन में फोकस कर रहे हैं. 14th, अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग? जीन पियाजे के मुताबिक इसमें से क्या नेसेसरी है लर्निंग के लिए? बिलीव इन इमेंट जस्टिस, रेनफोर्समेंट बाय द टीचर्स एंड पेरेंट्स, active exploration of the environment by the learner, observation of the behavioral adults. 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर्स. 15th, according to Jean Piaget, schema building occurs as a result of modifying new information to fit existing schemas and by modifying old schemas as per new information. These two are जीन पियाजे ने
स्कीमा बिल्डिंग की एक स्टेज बताई थी जिसमें स्कीमा बनता है। स्कीमा ये होता है कि अपनी ओल्ड इन्फॉर्मेशन से न्यू इन्फॉर्मेशन जब अगर उसे मिले तो उसको जनरेट करना। सो इसमें जो ये दो प्रोसेस हुई हैं उसे क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16. In a progressive classroom setup, the teacher facilitates learning by providing an environment that discourages inclusion, encourages repetition, promotes discovery and is restrictive. 16th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रमोट्स डिस्कवरी। डिस्कवरी को हमें प्रमोट करके क्लासरूम के सेटअप को फैसिलिटेट कर पाएंगे, लर्निंग को उस एनवायरनमेंट में हमें डिस्कवरी को प्रमोट करना चाहिए। ये एनकरेजेस रिपीटेशन, ये आ जाएगा एक तरह से रोट लर्निंग के लिए, ठीक है। तो ये इसका गलत आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सॉरी। एंड 17th, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या बताती है? टीचर शुड यूज़ MI एज अ फ्रेमवर्क। मल्टीपल इंटेलिजेंस, MI मीन्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग अल्टरनेटिव वेज टू टीच द सब्जेक्ट मैटर। एबिलिटी इज डेंसिटी एंड डज नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट एवरी सब्जेक्ट इन 8 different ways in order to develop all the intelligences. Intelligence is solely determined by IQ set test. 17th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। टीचर्स को ये बात याद रखनी चाहिए या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस जो फ्रेमवर्क है उसका यूज़ करना चाहिए सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाते समय। 18th, a 5-year-old girl talks to herself while trying to fool a teacher. Which of the following statement is correct in the context of the behavior displayed by a girl? 5-year-old गर्ल जो है वो खुद से बात कर रही है जब वो ट्राई कर रही है टी शर्ट को फोल्ड करने का। जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन एज दिस अ सोशल इंटरेक्शन वाइल लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज एन एक्सप्लोरेशन। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज अ चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू इमिटेट हर मदर। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन दिस एज अ egocentric nature of the child thought. Jean Piaget would explain this as a egocentric speech, while Lev Vygotsky explained as a teacher as a child's attempt to regulate her actions through private speech. 18th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जीन पियाजे ने इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा था, खुद से बात करने की जो स्पीच है, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने बताया था कि वो प्राइवेट स्पीच है उसकी। नेक्स्ट 19th, जेंडर इज एन। जेंडर क्या है? इनेट क्वालिटी, सोशल कंस्ट्रक्ट, बायोलॉजिकल एंटिटी या फिर फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। सो 19th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोशल कंस्ट्रक्ट, क्योंकि जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है पूरी तरह से। यहाँ पर बायोलॉजिकल एंटिटी में आ जाएगा हमारा सेक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 20, एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन social contrivist theory of Lev Vygotsky, which of the following method would you prefer for assessing your students? Fact based recall questions, objective multiple type questions, collaborative projects या फिर standardized test। अगर आप एक टीचर हैं जो कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में आप बिलीव करते हैं, इस थ्योरी में जो कि लेव वाइगोत्स्की की थी, तो हम इसमें से कौन सी एक्टिविटी कराएंगे या फिर क्या करवाएंगे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट करवाएंगे हम। ये है एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो कि सोशल बेसिस पे होगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप उसमें ज्वाइन करके इसकी या फिर अभी तक जो क्लासेस हुई हैं उनकी PDFs ले सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 21, टू कैटर इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज क्लासरूम अ टीचर शुड।
engage in a dialogue with students and value their perspective, impose strict rules upon his students, have uniform and standardized ways of teaching and assessment, या फिर segregate and label children based on their marks। 21st का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमें इंगेज रखना चाहिए स्टूडेंट को इन अ डायलॉग विद स्टूडेंट एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव। ये स्ट्रिक्ट रूल्स ये एकदम इनकरेक्ट है। हैव अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वेज ये भी एकदम इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे ऐसा नहीं कर सकते। और ये मार्क्स के बेसिस पे भी हम किसी भी बच्चे को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। असेसमेंट इज़ अ पर्पसफुल इफ़, असेसमेंट हमारे लिए पर्पसफुल होगा जब इट इज़ डन ओनली वंस इन द एंड ऑफ ईयर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवोल्यूशन एंड असेसमेंट इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सो डिफरेंस आप लोग भी समझिएगा। असेसमेंट कब जरूर मतलब पर्पसफुल होगा, जब वो साल में सिर्फ एक बार किया जाएगा ईयर के एंड में। Comparative evaluation are made to differentiate between the students' achievement. It induces fear and stress among the students. It serves as a feedback for the students as well as the teachers. So 22 का करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वैसे तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन सब में, लेकिन जो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स के लिए वो जितना फीडबैक का काम कर रहा है असेसमेंट, वो टीचर्स के लिए भी उतना ही अच्छे से फीडबैक का वर्क करेगा। अब अगर असेसमेंट हमने चिल्ड्रंस का किया, उसके बाद एक टीचर को ये पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह से पढ़ाया है, उन्होंने जो भी पढ़ाया, टीचर्स ने जितना पढ़ाया वो उनका कितना मीनिंगफुल रहा है। और स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा कि उन्होंने जो पढ़ा उसके बेसिस पे वो कहाँ पर हैं, उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं। सो ये इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 23rd, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज़ टू बी। NCF 2005 के अकॉर्डिंग टीचर का रोल क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फैसिलिटेटिव या फिर फैसिलिटेटर की तरह रोल होना चाहिए। फैसिलिटेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं। 24 रिसर्च सजेस्ट दैट इन डाइवर्स क्लासरूम आर टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट्स दैट्स देयर लर्निंग। 24th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग। डाइवर्स क्लासरूम में जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्टूडेंट से, उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी लर्निंग पे। इंक्लूज़न ऑफ चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। 25th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड कंटेंट एंड अप्रोच टू लर्निंग। नेक्स्ट 26th, having a diverse classroom with children from varied social, economic and cultural background enriches the learning experiences of all the students. This statement is, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है कि अगर हमारे पास डाइवर्स क्लासरूम है, जो कि ऐसे स्टूडेंट हैं उसमें जो कि अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, ये उनकी लर्निंग को बढ़ाएगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर नहीं है? इसका आंसर है करेक्ट। अब करेक्ट में भी इसमें 2 दिए हुए हैं, बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्किकल। हायरार्किकल मीन्स एक हायरार्की टाइप की बन जाएगी, तो ये एक तरह से करेक्ट है, इस तरह से लर्निंग होगी। लेकिन डी में क्या लिखा हुआ है? बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि अलग अलग क्लासरूम में एक ही क्लासरूम में अलग अलग सोशल या फिर कल्चरल वाले जो स्टूडेंट्स आएंगे, उन सब की लिविंग अलग होगी, उनका कल्चर अलग होगा। इससे जो उनके पीयर ग्रुप से स्टूडेंट्स बहुत सारी स्किल्स भी सीख पाएंगे। वो कोई सी भी स्किल्स हो सकती हैं, लैंग्वेज की स्किल्स हो सकती हैं, कोई भी वोकेशनल स्किल्स भी हो सकती हैं। इसका करेक्ट आंसर डी। 27th, चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड
can do very well in a regular school if suitable facilitation and resources are provided, will never be able to perform on a par with classmates in a regular school, should be sent only school for hearing impairment and hot to a regular school, will not be benefit from academic education only and should be given vocational training instead. 27th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैन डू वेरी वेल। वो वेरी वेल बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर उन्हें सुटेबल फैसिलिटीज़ मिलेंगी और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ये एकदम करेक्ट है और उन्हें रेगुलर स्कूल्स में नहीं पहुंचना चाहिए। और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो इनकरेक्ट हैं कि उन्हें शुरू से ही वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी जानी चाहिए क्योंकि वो पढ़ नहीं पाएंगे, ये सब कुछ इनकरेक्ट है। सो ये स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन या फिर ये जो भी डिफरेंट टाइप की स्टूडेंट्स, इंक्लूसिव एजुकेशन, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसको हमें टॉपिक को अलग से भी हम इसे कवर करेंगे। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर। गिफ्टेड लर्नर या फिर गिफ्टेड चाइल्ड के क्या इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? ऑप्शन नंबर डी, ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर इफ़ द क्लास एक्टिविटीज़ आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। क्लासरूम में कई बार ये सिचुएशन आप लोगों के सामने भी आएगी पढ़ाते समय कि अगर आप लोग कुछ इजी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो क्लास में कोई एक या फिर दो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि बोर हो जाएंगे। वो इधर उधर क्या करेंगे, वो इधर उधर शैतानी करने लग जाएंगे क्योंकि उनका ध्यान नहीं होगा उस चीज़ को पढ़ने में, उन्हें वो चीज़ बोरियत लगेगी। लेकिन अगर हम उन्हें एक चैलेंजिंग टास्क देंगे, अगर हम उन्हें कोई चैलेंजिंग टास्क देंगे या फिर कोई हार्ड क्वेश्चन या फिर कोई ऐसा टॉपिक देंगे तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे और फिर वो उसमें लग जाएंगे। ये एक गिफ्टेड लर्नर का एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। 29th, अ लर्नर कैन enhance effective learning in her elementary classroom by। 29th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये इसका करेक्ट आंसर है 29th का। और ऑप्शंस देख लेते हैं। इन्हांस इफेक्टिव लर्निंग इन एलिमेंट्री क्लासरूम, इनकरेजिंग कॉम्पिटिशन अमंग हर स्टूडेंट, ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। ऑफरिंग रिवार्ड्स फॉर स्मॉल स्टेप्स इन लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, सो इसके लिए ये यही रहेगा। कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लिव्स ऑफ द स्टूडेंट, उनकी जो भी लिविंग है, लिव्स हैं, उनमें हमें कंटेंट को कनेक्ट कर करके पढ़ाना है। जैसे कि EVS हो गया, उसमें तो काफ़ी कुछ कनेक्ट ही कर सकते हैं हम डे टू डे लाइफ से। वैसे ही सिमिलरली मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सब सब्जेक्ट्स में हमें कनेक्ट करके पढ़ाना है। 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट? Children are passive recipients of knowledge. Children are problem solvers. Children are significant scientific investigators या फिर children are active explorers of the environment. So 30 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है B, C and D। Children are problem solvers, ये होते हैं children are scientific investigators या फिर children are active explorers of the environment। फर्स्ट वाला बस इसका इनकरेक्ट है, पैसिव रिसिपेंट्स ऑफ नॉलेज। पैसिव वो रिसीव नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पैसिवली ही सुनेंगे, वो एक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो B, C and D इज़ करेक्ट आंसर, B, C and D। तो आज के जो है हमारे क्वेश्चंस वो होते हैं कंप्लीट। एंड डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जा कर के आप इस सीरीज़ से जुड़ सकते हैं जो कि चल रही है हमारी PYQ सीरीज़ ऑफ CDP। इसमें हम नेक्स्ट करेंगे 2017 के CDP के क्वेश्चन पेपर्स, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।